خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارا چمکتا ستاروں کا سیگمنٹ ماشاءاللہ سے, اور اب ہم آغاز کریں گے اپنے ہیلتھ کا سیگمنٹ کا, اور ڈاکٹر ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. پہلے ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں, پھر انشاءاللہ آج جو پورے ویک جو اب آنے والے دن ہیں, ہم جو ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, خوش اللہ کا آمدید شکر کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. جزاک اللہ. کیسے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ؟ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی ڈاکٹر؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ, اور امید کرتے ہیں کہ آگے سارے دنوں میں ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ بہتر کرے گا ماشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آج کا ناظرین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کڈنی, اور انشاءاللہ ہم اس پورے ویک آنے والے پہ ہم کڈنی پہ بات کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کے سوال ایڈ کریں گے اس میں جو آپ کے سوال ہیں. آج ہم پہلے کڈنی پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس میں اپنے سوالات ایڈ کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, کڈنی کے حوالے سے رمضان شریف میں کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ آرگن ہے ہمارا باڈی کا, بالکل, اور اس کا نیم و بدل نہیں ہے. پہلی چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ نیم و بدل تو اس کی دو چیزیں ہیں, یا تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں 1 سے لے کر 5 تک. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی 5 تک کی کنڈیشن پہنچ چکی ہوتی ہے, اس میں 2 ہی راستے اختیار کیے جاتے ہیں, یا تو ڈائلیسس کی طرف آ جاتا ہے یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف. اچھا, کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف اگر جایا جائے تو کڈنی کا میچ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈائلیسس کا پروسیجر ہوتا ہے, اور ڈائلیسس کا پروسیجر جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے, بڑا تکلیف دہ عمل ہے. پوری باڈی سے آپ کے پانی کو جو ہے نا وہ اخراج کیا جاتا ہے. کڈنی کا بیسک کام جو ہے وہ ہماری باڈی سے جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں, جتنے بھی کیا کہتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ جتنے بھی افیکٹڈ مادے ہوتے ہیں ان سب کا اخراج کرتی ہے گی, ان کو ٹرانسپلانٹ وہ کرتی ہے گی, فلٹر کرتی ہے. ساری اس کے اندر ایک جالی نما ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ فلٹرائزیشن کر کے یورین کے ذریعے تمام فاسد مادوں کو اخراج کر دے. اچھا, ہمارے یہاں کیونکہ رمضان شریف میں ماشاءاللہ سے پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے, تو میں بار بار یہی کہہ چکا ہوں, کئی دفعہ یہ بات ڈسکس کی ہے اس حوالے سے کہ یار پانی کا انٹیک تھوڑا سا زیادہ استعمال رکھیں. سافٹ ڈرنک اور میٹھے کا خاص کر کے جیسے ہم لوگ ڈرنک وغیرہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے. جتنا کم کریں گے اتنا زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ کڈنی کو سب سے زیادہ نقصان دہ آج کل, کیونکہ ڈائبٹک بہت زیادہ ہے گی, تو بہت سارے پیشنٹ میں جو لوگ ڈائبٹک ہیں ان کے لیے کڈنی کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے گا, اور اس میں کیونکہ میڈیسن وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو افیکٹڈ ہو سکتی ہیں کڈنیز. تو ایسی صورت میں میٹھے کا بالکل استعمال بند کر دیں, نمک کا استعمال کم سے کم کیا جائے. پوٹاشیم اس میں جو ہے مینٹین رکھنا چاہیے گا, کیونکہ سوڈیم ہوتا ہے گا, نمک میں سوڈیم ہوتا ہے تو وہ کڈنی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں. ایسی چیزیں استعمال کریں جو ایسے پھل استعمال کریں جو رسدار ہوتے ہیں, جیسے کہ خربوزہ ہے, تربوز ہے, کوکمبر ہے, کہ کھیرا ہے. اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا آپ استعمال میں رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں 3-4 چیزیں ایسی بھی ہیں, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسٹون ہو جاتا ہے کڈنی میں, اسٹون کی وجہ سے ہو جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, پین ہوتا ہے. رمضان شریف میں موسٹ آف دیم یہ ہوتا ہے, یو ٹی آئی ہو جاتا ہے. تو اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے گا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے. جتنا پانی استعمال کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے. ایسی چیزیں استعمال نہ کی جائیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں, جیسے ہم نے کہا چینی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, نمک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, آئلی چیزیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں گی, تو یہ ساری چیزیں افیکٹڈ ہوتی ہیں گی. تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کیا جائے, اور ٹائمنگ کے حساب سے کیا جائے. بہت سے پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے وہ پانی پیتے ہیں تو پانی کی ایک تو پیاس نہیں لگتی, اور دوسرا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پانی کی کوشش کرتے ہیں کہ جی نارملی کتنے گلاس پینا چاہیے. تو نارملی جو کڈنی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے گا کہ کم سے کم 8 سے 12 گلاس تک کا پانی استعمال کرنا چاہیے. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو ڈائلیسس پر ہوتے ہیں, تو ان کو یہ چاہیے گا کہ وہ احتیاط کریں. ان کے لیے یہ ہے گا کہ وہ نارمل لمٹ میں پانی کا استعمال کریں, جیسے میکسیمم 3 گلاس 4 گلاس. ابھی پیشنٹ کی سچویشن کے اوپر اور کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے گا کہ کیا اس کی سچویشن ہے, کیا کنڈیشن ہے, آیا خدا نخواستہ وہ ڈائلیسس پر تو نہیں ہے. اگر ڈائلیسس پر ہے تو پانی کی مقدار بہت کم کر دی جاتی ہے گی. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کہاں پانی کا کم استعمال کرنا ہے اور کہاں زیادہ استعمال کرنا ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ اسٹون وغیرہ ہے, یو ٹی آئی ہے, یورین میں برننگ ہے, سنسیشن ہے, پین ہے, تو اس صورت میں پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے اس میں تھوڑے سے میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں میں یورین جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی فوراً جو ہے نا آپ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں. ایسی صورت میں اگر پانی کا استعمال زیادہ رکھیں گے اور یورین سٹک ہو گیا, رک گیا, نہیں ہو رہا, تو اس صورت میں بلیڈر میں پین شدید ہو جائے گا, ریورس
प्रोसीजर जो है वो रिटर्न किडनी की तरफ चला जाएगा और वो बहुत ज़्यादा नुकसान दह होता है। ऐसी सूरत में आप पानी का इस्तेमाल कम कर दें, बल्कि अपने नियर अबाउट किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से लाजमी रब्ता रखें। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो पानी कम से कम कर दिया जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। और जुनैद हमें मैसेज करते हैं। जुनैद, सबसे पहले आज आपको दोबारा मैसेज आया और आपने नीचे लिखा कि मैंने 5 दिन से मैसेज आपको किया हुआ है। सम टाइम क्या होता है, मैं इनबॉक्स रोज़ चेक करता हूँ, सम टाइम क्या होता है कि आपके मैसेज मेरे पास शो नहीं होते। आज आपको जब दूसरा मैसेज आया तो शो जुनैद ये कहते हैं, डॉक्टर साहब, कि मेरे पिछले 3 महीने से कान में दर्द था और मेरे घर के किसी बड़े ने कहा कि हल्का सा नीम ऑयल गर्म करके अपने कान में डालें, और उससे मुझे उस टाइम तो बेहतरी हुई, लेकिन अब मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच जुनैद। देखिए, हमने लास्ट सेगमेंट में ये बात कही थी कि एक तो मीठे का इस्तेमाल कम किया जाए। इस सूरत में आपने जैसे टोटके होते हैं, घरेलू टोटके अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा बताया जाता है। पुराने लोग तो ये करते थे कि जी सरसों के तेल में लहसुन जलाकर वो कान में डाल दिया जाता था। तो ये उस सूरत में होता है कि खुदा न खास्ता आपके कान में कोई इन्फेक्शन नहीं है और सिर्फ ड्राइनेस है, खुश्की है। तो खुश्की की वजह से अगर आप उसको हल्का फुल्का तर कर लेंगे तो उसमें आराम आ जाता है। और अगर इन्फेक्शन इंटरनली मौजूद है और उसमें कोई तकलीफ़ नहीं थी, सिर्फ इचिंग थी, ख़ारिश थी, तो उसमें जब ऑयल डाला तो वो वक्ती तौर पे तो थोड़ी सी इचिंग वगैरह ख़ारिश कम हो गई, लेकिन इंटरनली अंदर जाके उसने इन्फेक्शन पैदा कर दिया। तो ऐसी सूरत में आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और ये ज़रूर देखा करें। देखिए, घरेलू टोटके और सेल्फ़ मेडिकेशन से थोड़ा सा एहतियात किया करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं। घरेलू टोटके पुराने जो वालिदैन वगैरह और हमारे आबा व अजदाद बताते थे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो बहुत सूदमंद है, बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, क्योंकि देखें अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पर। उस हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम पे ये भी कहा जाता था, अल्लामा साहब इसकी रहनुमाई भी करेंगे कि जी कान में जो है वो क्या कहते हैं, कोई दवा वगैरह डालने से जो है वो रोज़ा टूट जाता है। उस सूरत में भी हमने इस मुतालिक डिस्कस किया था कि खुदा न खासा अगर कान में कोई इन्फेक्शन है या पर्दा फट गया है, डैमेज हो गया है, रैप्चर हो गया है, तो उस सूरत में फिर नुकसानदेह होता है। तो ऐसी सूरत में कोशिश ये क्या करें कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। लेकिन ये मेडिसिन आपने जो यूज़ की, ये तो घरेलू एक टोटका टाइप का था, इससे काफ़ी हद तक इफादियत हो जाती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, उसमें मज़ीद पस पड़ सकती है, कान का पर्दा डैमेज हो सकता है, लीकेज हो सकती है, अंदर कोई दाना पस टाइप के कंडीशन में आ सकता है। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा एहतियात रखें। बाकी मेडिसिन के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर मौजूद है। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ, 0321-2157457 03102913123123। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ऑयल का बताया कि कान में अगर इन्फेक्शन था तो और हो गया। अक्सर हमने ये सुना है कि जो घर के जो टोटके होते हैं, हम सारे उसको कर रहे होते हैं बहुत अच्छा समझ के कि नहीं, लेकिन जब हम वही जब चीज़ बढ़ती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत गलत है। जैसे कि आपको पता है जल जाता है अक्सर, तो घर में सबसे पहले हर कोई पेस्ट लगाता है उस पर, और जब हम डॉक्टर पे जाते हैं तो कहते हैं ये इन्फेक्शन ही पेस्ट, ये जो बने हैं क्या कहते हैं, छाले टाइप के बन जाते ये हैं, बने ही पेस्ट की वजह से। जी बिल्कुल, अक्सर बेशतर यही होता है। उसमें बेहतरीन तो ये है कि अगर आपके घर में शहद मौजूद है और असली शहद मौजूद है तो आप उसके ऊपर अप्लाई करें, ना तो छाले बनेंगे ना ही कोई निशान रहेगा। देखिए, कुछ चीज़ें बिलाल ऐसी हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि कुछ फार्मूले और कुछ टोटके ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिसमें हमें अवेयरनेस नहीं थी तो वो हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। सर्च के ऊपर भी डिपेंडेड होता है। अब जैसे जैसे जदीद दौर आता जा रहा है, सर्च आती जा रही है, तो उसमें बहुत सारी जिद्दत आती जा रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंवले बन जाते हैं, और आंवले बन जाते हैं तो वो डेड स्किन हो जाती है, तो उसमें फिर पानी वगैरह भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो वो इन्फेक्शन कर जाता है, वो इन्फेक्शन कर जाता है। एक्चुअल वो जो है ना, इंटरनली जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसको डैमेज कर देता है। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। और हुज़ैर ने हमें कल मैसेज किया था डॉक्टर साहब, जो कि उन्होंने कहा था जो उनका प्रॉब्लम था कि मेरी स्किन पे पिंपल है और मेरी स्किन रेड होती है। हुज़ैर आज उन्होंने हमें मैसेज किया है कि डॉक्टर साहब ने मेरी एज पूछी थी, मेरी एज है 32, और बिलाल आपने ठीक कहा था कि मैंने वाइटनिंग की क्रीम्स लगाई थी जिसकी वजह से मेरी जो कलर है वो रेड होने लग गया। अब वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से वो कम्प्लीटली अपनी स्किन की ट्रीटमेंट करवाएं जिससे रेडनेस भी जाए, और वो चाहते हैं कि मेरा एक वन टोन कलर हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं मेरा हाथ, नेक और फेस अलग। जी थैंक यू सो मच उज़ैर। हमने डिस्कस किया था, एज पूछी थी तो इसी वजह से पूछी थी आपसे कि आपकी एज के हिसाब से हम देखें कि 32 हम
تو یہ آپ نے خود ماشاءاللہ سے اس میں ایکسیپٹ کر لیا گا کہ آپ نے جو ہے وہ کریم وغیرہ وائٹننگ کریم وغیرہ یوز کیے ہیں، اسٹیرائڈ یوز کیا. جب اسٹیرائڈ یوز کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنا اس کا افیکٹ ہوگا اسی کا سائڈ افیکٹ اتنی ہی اسپیڈ سے ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، 100 گنا مزید بڑھ جاتا ہے. کہ ہر افیکٹ کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے گا، جتنی اسپیڈ سے افیکٹ ہوگا اتنی اسپیڈ سے سائڈ افیکٹ بھی ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ ایسی چیزیں نہ استعمال کریں. کاسمیٹکس کی طرف اگر جاتے بھی ہیں تو اس میں برانڈیڈ وغیرہ یوز کیا کریں. جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں برانڈیڈ تھوڑی سی کاسٹلی پڑتی ہیں، کاسٹلی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں ان برانڈیڈ چیزیں لے لیتے ہیں. جب ان برانڈیڈ چیزیں لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے، اتنی ہارڈ نہیں ہوتی ہے، کہ سینسیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں استعمال آپ اپلائی نہ کریں اپنی اسکن کے اوپر. دوسری بات، آپ ہم سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کہا تو انشاءاللہ ہم بالکل کر دیں گے، اور آپ کی 2 ٹون اسکن جو ہے وہ بالکل ایکول ہو جائے گی اور ایک جیسی ہو جائے گی، وائٹ کی طرف ہو جائے گی جو کہ آپ چاہتے ہیں. تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر موجود ہے. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 03212157 457 03102913 ٹائمنگ کے اعتبار سے اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا یا بلال سے رابطہ کر لیجیے گا، جیسے بھی ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، فضا کا میسج ہم ٹرانسمیشن میں شامل کر رہے ہیں، ان کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن آپ کا جو میسج شامل کرنے کا اس کا ریزن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارا سیگمنٹ آپ لوگ اتنا دیکھتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں، جزاک اللہ دل سے. اور فضا نے ہمیں میسج کیا ہے کہ بلال کل آپ نے جو حزیر ہے وہ میرے بھائی ہیں، جو کل آپ نے ان کو کہا تھا کہ اپنے فیس پہ آئسنگ کرا کریں، وہ میں ان کو بول بول کے تھک جاتی ہوں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. تو جزاک اللہ. ماشاءاللہ میں نے یہ سوال ایڈ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے سب میسج ہم میرے لیے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے، ہماری ٹرانسمیشن کے لیے بہت ویلیوبل ہے، کیونکہ آپ لوگ قیمتی ٹائم نکالتے ہیں، ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہے. اور عزیر اپنی بہن کی سنا کریں، بہنیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی بات سنا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، شمائلہ کا ہم میسج ایڈ کرتے ہیں. جی شمائلہ ہمیں کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اور بلال، میرے بال پہلے بہت لمبے تھے، میں بہت کٹواتی تھی، اب میری ایج 33 ہے اور اب میرے بال بڑھتے نہیں ہیں. جی تھینک یو سو مچ شمائلہ. دیکھیں بالوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں گی. وہ ڈسکشن سب سے پہلے فرسٹ آف آل نیند آ جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ وٹامنس کی کمی آ جاتی ہے جو کہ آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، اور خاص کر کے خواتین میں وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن اے، وٹامن سی، یہ چیزیں ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں ایکسٹرنلی طور پر، انٹرنلی طور پر نہیں کرتے. انٹرنلی طور پر اس کو یوز کیا کریں، اس سے کافی حد تک آپ کے بال بہتر ہو جائیں گے. پہلی چیز میں آپ سے کنفرم کر لوں کہ کہیں آپ مدر فیٹ تو نہیں کرتی ہیں گی، میرڈ ہے ان میرڈ ہے، یہ چیز تھوڑا سا ہمیں ڈسکشن پہ بتا دیجیے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم مزید ہیلپ فل ہو جائیں گے، اور آپ کو میڈیسن بتانے میں، آپ کو کیا کہتے ہیں ڈائٹ بتانے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. تو کوشش یہ کریں کہ نیند بہتر کریں اپنی، آئلنگ کیا کریں، اور وٹامنس کا خاص خیال رکھیں. وٹامن ڈی خاص کر کے اس کی ڈیفیشنسی ہمارے یہاں بہت زیادہ خواتین میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. ان کے ایشیا میں اگر دیکھا جائے تو 70% خواتین میں جو ہے وہ وٹامن ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی پائی جا رہی ہے. خواتین کے علاوہ بھی میل میں بھی پائی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دھوپ نہیں لیتے، ہمارے یہاں دھوپ کی بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم لوگوں نے کنجسٹڈ گھر کر دیے ہیں، فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ریزن بھی ہے اس وجہ کا. اور اس میں کوشش کریں کہ وٹامنس کا استعمال رکھیں، ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ جیسے ہم نے ڈیٹاکس کے حوالے سے بات کی تھی کہ ڈیٹاکس واٹر یوز کیا کریں. اگر خدا نخواستہ آپ کی اسکن میں کوئی پرابلم ہے، اسکن الرجی ہے، اسکن ڈیزیز کوئی بلٹ اپ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو ہیئر فال ہو. شیمپو اپن چینج کریں، شیمپو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اچھے سے اچھا یوز کریں. آئل جو ہے وہ بہتر سے بہتر کمپنیز کا جو کہ یوز کیا جاتا ہے وہ کریں. اگر نہیں ہے اس میں کوکونٹ آئل ہے، سرسوں کا تیل ہے، اس کو لازمی یوز کیا کریں. اگر نہیں کر سکتے ہیں آپ میڈیکیشن پہ جاتے ہیں تو ہمارا اپنا آئل انشاءاللہ وہ ریڈی ہو چکا ہے، آپ چاہیں تو وہ آن لائن منگا سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس سے کافی حد تک بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور شمائلہ اور تمام جتنے بھی ہمارے سیگمنٹ دیکھنے والے میرے بھائی اور بہنیں، وہ ایک چیز کا یہ خیال رکھیں، جہاں تک مجھے ڈاکٹر صاحب کے جواب سن کے لگتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی میسج کرتے ہیں کسی بھی پرابلم کے حوالے سے، ایج ضرور مینشن کیا کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ کو جواب دینے میں بہت ایزی رہتا ہے، کیونکہ ہر ایج پہ ڈفرینٹ ان کا جواب ہوتا ہے. تو ایک چیز یہ پلیز آپ نوٹ کر لیں. اور راہیل ہمیں میسج کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں یونیورسٹی جاتا ہوں اور میں کھاتا بہت ہوں، میرا ویٹ نہیں بڑھتا، آپ کچھ ایسا بتائیں جس سے میرا ویٹ بڑھے، اور ساتھ ساتھ بلال کوئی اچھا جم ہمیں سجیسٹ کرے. راہیل تھینک یو سو مچ. دیکھیں آپ کے لیے ایک مثال ہے گی، کہتے ہیں کہ کھائے بکری کی طرح سوکھے لکڑی کی طرح. ہمارے ایک میڈیسن ہے، وہ بہت اچھی میڈیسن ہے. آپ یہ دیکھیں خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں سارے ہی کمزور تو نہیں ہیں، جیسے ہمارے پاس سیگمنٹ میں موجود ہے
बहुत अच्छे नात ख्वाह हैं, आप उनको रोज़ सुनते भी हैं माशाल्लाह से, वो भी खाए बकरी की तरह और सूखे लकड़ी की तरह आएंगे, तो हो सकता है। लेकिन आपके लिए ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो खा रहे हैं वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनमें जंक फूड आ जाता है। जंक फूड कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल किया करें। और मेरी बिरादराना तौर पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो उसमें ये है कि मुट्ठी भर चने, भुने हुए जो चने होते हैं मुट्ठी भर, वो अपनी पॉकेट में रख लें और चलते फिरते उसको इस्तेमाल में रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका वेट गेन हो जाएगा। वैसे एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है कि जितना हैवी वेट लिया जाए उससे हम अपने जिस्म को फुला लें या मसल्स को फुला लें या उनको एक्टिव कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादा वेट उठाने से मसल्स जो है ना इंटरनली सम टाइम डैमेज भी हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो एक्सरसाइज इतनी करें नॉर्मली, जिसे एक्सरसाइज कहा जाता है, एक्सरसाइज करें। वेट लिफ्टिंग में अगर आपका वेट है और आप उतना वेट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बॉडी उठा सकती है, तो उतना ही वेट उठाया करें। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। और साथ साथ जिम के बारे में मैं आपको बताऊं, देखें डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आपके एरिया में कोई अच्छा जिम है, और सबसे पहले एक चीज़ ये भी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिमों में जब मैं भी खुद होता हूँ, तो आप लोग जो यूट्यूब से देख के जो आप एक्सरसाइज करते हैं ना, वो बहुत गलत है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है। जो आपका कोच होगा ना, जो आपका ट्रेनर होगा, वो आपको प्रॉपर वे में फिजिकल वहाँ पे करके दिखाएगा ये एक्सरसाइज है। यूट्यूब पे क्या होता है कि हम सिर्फ वीडियो देखते हैं, हमें प्रॉपर पोजीशन नहीं पता होती। एक चीज़ तो ये आप ख्याल रखें। और जिम का फिर से मैं कहूँगा कि जो आपका एरिया है वो डिपेंड करता है, कि उस लिहाज से फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है। जैसे DHA में बहुत सारे माशाल्लाह से जिम है, क्योंकि DHA के बारे में मुझे ज़्यादा पता है। अगर आप उसके अलावा कहेंगे तो वो भी फिर मैं देख के आपको बता सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। और राहिल हमें मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे स्टमक में बहुत प्रॉब्लम है। मैं पहले वॉशरूम 1 टाइम जाता था, अब मैं 2 टाइम जाता हूँ, और मेरे स्टमक में प्रॉब्लम भी बहुत रहता है, दर्द भी रहती है मुझे। थैंक यू सो मच राहिल। देखें वैसे तो नेचुरली तौर पर एक 24 घंटे में एक इंसान को खुलासा हो जाना चाहिए वॉशरूम, यानी कि 24 घंटे में एक दफ़ा अगर खुल कर हो जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। सम टाइम 2 टाइम भी हो जाता है। अब ये आपकी अपनी डाइट के ऊपर है कि आप ज़्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं, खाने कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऑयली इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, परसों भी इसी हवाले से हमने डिस्कस किया था कि स्टमक में जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है वो ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, गैस्ट्रिक आ रही है, एच पायलरी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसकी रीज़न ही यही है कि हम जो है वो क्या कहते हैं जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारी खाने की टाइमिंग सही नहीं है। टाइमिंग अपनी बेहतर करें। टाइमिंग बेहतर के साथ साथ खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना रखें। राइस हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों में ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा राइस का इस्तेमाल करते हैं, गंदम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें ज़ाहिर बात है स्टमक की कैपेसिटी है वो 1 लीटर से 3 लीटर तक अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। अगर उससे ओवर जाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो प्रॉब्लम तो फिर स्टमक में लाजमी आनी है। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ IBS का मसला हो, मे बी आपकी जॉब ऑफ नेचर टेंशन वाली हो, डिप्रेशन वाली हो, तो उस सूरत में भी स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मिजाज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है। उनसे लोगों की बातें सुन तो ली जाती हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, वो सारा स्ट्रेस अपने स्टमक के ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर उसमें से आप शामिल हैं तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप पहले अपनी डाइट बेहतर करें, और टाइमिंग ख़ास करके जो टाइमिंग है उस टाइम पर खाना खाएं। अगर भूख लग रही है तो एक दफ़ा खाएं, नहीं लग रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने एक टाइम बांधा हुआ है, हमने एक रूटीन बांधी हुई है कि जी हमने जो है हर वो 6 घंटे बाद या 7 घंटे बाद हमने खाना खाना है। अब सुबह में अगर आपने नाश्ता किया है और नाश्ते के बाद फिर आपने 8 बजे अगर नाश्ता किया है, जी 1 बजे लंच हो गया, लंच किएगा, फिर रात में आपने डिनर किएगा। और डिनर में हम लोग करते क्या है कि ज़्यादातर बाहर के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें बाहर के पराठे वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। खाने जो बाहर के इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी यूज़ किए जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप बाहर के खानों पर ना, घर पर आ जाए, घर के खाने खाएं। और रेड चिली जिसे हम कहते हैं लाल मिर्च, उसका इस्तेमाल कम से कम करें, हरी मिर्च का इस्तेमाल रखें, उसमें ज़्यादा हद तक बेहतरी आ जाएगी, ब्लॉटिंग ख़त्म हो जाएगी, गैस्ट्रिक का जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। और अभी हम जा रहे थे अपने स्कॉलर हमारे साथ उनकी जानिब, लेकिन हमें कदीर का मैसेज आया और वो कह रहे हैं कि मैं आपकी ट्रांसमिशन देख रहा हूँ, और 3 दफ़ा मैंने आपको अपना मैसेज फॉरवर्ड किया था, जो कि आप ट्रांसमिशन में शामिल नहीं करते। मैं टीचर हूँ, मेरा कलर सांवला है, मुझे आपसे अपने फेयरनेस की ट्रीटमेंट करवानी है, और मुझे वो ट्रीटमेंट बताइएगा जो आप बिलाल को करते हैं।
अच्छा माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। पहली चीज़ तो ये है कि बिलाल माशाल्लाह ख़ुद समझदार है और कुछ नेचुरली तौर पर माशाल्लाह से जो है उनका कलर फेयर है, फैमिली हिस्ट्री में भी उनका कलर फेयर है। आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखें, फैमिली हिस्ट्री में अगर आपका गंदमी कलर है तो माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है आपका, तो इसमें कोई वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप फेयरनेस के लिए हवाले से बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कलर फेयर हो जाए तो इंशाल्लाह हमसे रब्ता करें, अल्लाह ने चाहा तो वो बेहतर हो जाएगा, आपका कलर फेयर भी हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। और कदीर आपने ये भी लिखा है कि आप गरीबों के मैसेज भी आप शामिल कर लें। मैं बिल्कुल शामिल करता, लेकिन मुझे आपका मैसेज थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने शामिल कर दिया। चले, जज़ाकल्लाह। लेकिन आप लोग की मोहब्बत है, आप जो भी लिखते हैं। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तैमूर भाई हमारे स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आज का हमारा सेगमेंट उनके साथ हुआ था, हम उसमें कुछ सवाल ऐड करेंगे। जी, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुजद्दिद साहब। मुफ्ती साहब, हम गुनाहों की कसरत की का जिक्र कर रहे थे कि एक नासूर हमारे माशरे में आ चुका है कि हम बहुत ज़्यादा जो है नाशुक्रे हो गए हैं, गुनाहों की कसरत है जिसकी वजह से हमारे रिस्क के ऊपर तंगी आ गई है। तो उसका जो एक फैक्टर हमने जिक्र किया था सिला रहमी, आजकल ये बहुत आम हो गया है, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करना, रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लेना, फिर एक जेलसी फैक्टर भी आता है अगर रिश्तेदार हमसे आगे निकल गए हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं और माशरे में इसका क्या एक रोल है, हमें किस तरह से रिश्तेदारों के साथ मामलात करने चाहिए? बिस्मिल्लाह। देखिए, सिला रहमी बज़ात खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, सिला रहमी जो है हुकूकुल इबाद में से, हुकूक इबाद के अंदर से है। और सिला रहमी का ताल्लुक जो भी आपके करीब के रिश्तेदार हों या दूर के रिश्तेदार हों, चाहे आपके कोई जानने वाले हों या आपके मातहत हों, सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये वजह आपको है, रमज़ान का मौका भी है, तो आपने देखा हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स ज़कात भी अपने करीब वालों को देता है तो उसमें अल्लाह ताला उसको 2 अजर देता है। बिल्कुल, 2 अजर ज़कात देने का, दूसरा सिला रहमी का। तो इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। और आज हम देखें ना तो हमारे जो माशरा है, इस बुनियादी जो हमारा फ़लसफ़ा हयात था, इससे हम बहुत दूर हो गए। बिल्कुल, ये सिर्फ ये थी कि हम कोई दूर पड़े के रिश्तेदारों के साथ, आज हम अपनी फैमिलीज देखें ना, चाहे अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं या बहनें वगैरह हैं, तो अब देखें अब सिस्टम ये होता जा रहा है कि एक घर में या एक फ्लोर में तो दूसरा फ्लोर में दूसरा है, तो उसको ऊपर वाले का पता नहीं है, फ्लोर वाले का ऊपर वाले को नीचे वाले का पता नहीं है कि वो किस मामलात के अंदर है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे बड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे अंदर माशरे में एक बेअतदाली पैदा हो रही है। सही सही। कि जब राब्ते इंसान जब जो दीन इस्लाम है ना, वो इज्तिमाइयत का मज़हब है, वो एक दूसरे से मिलने जुलने का दर्ज देता है। मिसाल के तौर के ऊपर जमात रखी गई है कि मस्जिद में जाके जमात करो, तो क्यों रखी गई कि ताकि लोग इज्तिमाइयत में दूसरों से मिलें, इसके बाद वहाँ घर से निकलेंगे, नमाज के वक्त मिलेंगे, नमाज के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को पता चलेगा, हाल पता चलेगा कौन किस हाल के अंदर है, किसके हालात क्या हैं, क्या कुछ है। उस वजह जब ईदैन के ऊपर बड़ा इज्तिमा आ गया, बड़ा इज्तिमा करो तो ज़्यादा लोगों से उस वक्त वहाँ पर मुलाकात हो। तो अब ये हमारा जब मसला ये है कि अब हमें अपने जो हमारे साथ के लोग हैं, हमें उनके भाइयों का नहीं पता। अब यहाँ आप देखते हैं कि एक भाई घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला होगा और दूसरा भाई खूब अल्लाह ताला उसको नवाजा है और वो दूसरों को नवाज भी रहा होगा, वो अफ्तारियाँ भी करा रहा होगा, तो वो दस्तरखान भी लगवा रहा होगा, लेकिन उसको अपने भाई का नहीं पता कि भाई के अंदर घर की क्या हालात हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो जो फैमिली यूनिटी थी ना, वो ख़त्म हो गई हमारी। बिल्कुल। फैमिली यूनिटी ख़त्म होने से, जब फैमिली यूनिटी ख़त्म हुई तो अल्लाह की रहमत ख़त्म हो गई। जब अल्लाह की रहमत ख़त्म हुई तो आज हम देखते हैं मुख्तलिफ परेशानियों के अंदर कि हम क्यों इतनी परेशानियों के अंदर हम घिरे हुए हैं। कोई मतलब मुझे ये परेशानी है तो मुझे ये परेशानी है। अगर कोई आप किसी को आ जाए ना तो पहले बंदा ये सोचता है यार कोई काम से तो नहीं आया ये बंदा। एक कॉन्सेप्ट ये भी आ गया है कि ना कि किसी काम से आया होगा जब भी उसमें आ गया। बिल्कुल। और एक ये भी अब तो बहुत बन गया, जैसे मेहमान आना है, किसी ने आना तो पहला सवाल पूछते हैं आप जाएंगे कब। हालांकि आप बड़ी अच्छी बात की, आप कहता हूँ कि मेहमान की अहमियत की, मेहमान तो बाईस रहमत है। कब तक हैं ये सवाल? तब तक है। हाँ जी। आप देखिए ना, साथ लेके आता है, वो रिस्क लेके आता है। कितनी मिसालें हमें मिलती हैं सहाबे किराम से, वो सहाबे किराम की भी, पीछे अंबिया किराम की भी, कि वो जब तक घर में खाना नहीं खाते थे जब तक कि कोई के मेहमान ढूंढ के ना ले आए। वजह है कि मेहमान बैठे जब घर में बरकत आती है और रहमतें आती हैं, और उसके साथ जो उसने सलूक होता है ना, फरमाया कि जब तक जिसमें वो मेहमान खा रहा है ना,
वो रिस्क आपके हिसाब से आउट हो गया है, मतलब उसमें आपके हिसाब में नहीं है, वो अल्लाह ताला उसका हिसाब उसका हिसाब ही नहीं, और बरकत जो आ रही है वो अलग ही आ रही है। बिल्कुल तो ये बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट था कि हमारे मेहमानों का, जैसे हमारा पिछली दिन आपने जिक्र किया था कि हम लोग ऐसे ही मतलब कि ये मौके होते थे रमज़ान के या शम्बाद के, ईद वगैरह के, एक दूसरे की कुछ चीज़ें या पड़ोसियाँ जाने, या कोई घर में आज मोहल्ले वालों को बुला लिया था, भाई बहनों का आज बुला लिया, अफ्तारी भेजते थे। तो ये एक सर में ये क्या सिला रहमी की सब सारी मिसालें हैं, और उस वजह से माशरे में एक दूसरे का ख्याल रहता था, परेशानियाँ कम होती थी, लोग एक दूसरे से शेयर करते थे अपने मामला। ठीक है मुफ्ती साहब, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल और भी है, क्योंकि आपने कहा कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, ज़कात के मामलात में भी हम कर, ऐसे होता है कि अगर हम किसी करीबी रिश्तेदार को ज़कात की रकम दे रहे हैं तो एक झिझक होती है ये बताने में कि यार ये पैसे ज़कात के हैं, तो हम खामोशी से उनको दे दें तोहफ़ा कहकर, गिफ्ट कहकर, और हमारे दिल में नियत हो कि ये ज़कात के पैसे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। और अगर आप इजाज़त दें तो ये सवाल का जवाब हम लेते हैं, और अभी हम ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमज़ा नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद है, हम नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम अपने स्कॉलर से इसका जवाब लेंगे। हमज़ा कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। और हमज़ा डॉक्टर साहब अच्छे लग रहे हैं, आप सीधा घर से यहाँ ट्रांसमिशन में आ रहे हैं या कहीं दावत वगैरह में गए? चमक भी रहे माशाल्लाह। कुछ पूछ रहे हैं आप? घर पे सीधा यहाँ? जी घर से आ रहा हूँ। अच्छा घर से आ रहे हैं माशाल्लाह। तो क्यों अच्छे क्यों लग रहे हैं, क्या रीज़न क्या है इसका? कुछ बात है आप लोगों की। हमारी तो पहले दिन से, आज थोड़ी, लेकिन आप अच्छे लग रहे हैं। नहीं मतलब जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं तो माशाल्लाह मोहब्बत निखरते बढ़ती जा जा रही है, और रहे ये रोजे इज़हार होते हैं, भी बढ़ता जा रहा है। रोजे का नूर आता जाता है ना, तो वो बढ़ता जाता है। अब जो उन्होंने बोला ये बात तो हकीकत हो सकती रोजे का नूर है। तो रोजे क्या भी उन्होंने रखने शुरू किए? रोजे ऐसे से बढ़ता है ना, अच्छा, उसकी तो वो नूर देर से आना शुरू हुआ। हमजा के मुतालिक एक अफवाह भी है कि ये बहुत सारी फ्राइज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो सही है। तो फिर कल से यहाँ कोई डिस्प्ले करवाइए ना। चले हमजा बेचारे फंस गए हैं। चले बिस्मिल्लाह हमजा। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जदों वक्त नज़ावे, जदों वक्त नज़ावे, दामन दी हवा देना, जदों वक्त नज़ावे, दामन दी हवा देना। और मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, आका मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल, मेरी कब्र वसा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए हमज़ा, आमीन सुम आमीन। और हम अपने स्कॉलर के पास दोबारा जाते हैं और जो तैमूर भाई का सवाल था उनके जवाब की तरफ जाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। देखिए ये बड़ा इस्लाम ना जो दीन बड़ा बेहतरीन मज़हब है, वो दूसरों के इज़्ज़त नफ्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। किसी भी शख्स की इज़्ज़त नफ्स मुतासिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़कात का जब मामला आता है ना तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि शायद
है भी फरमाया गया ज़कात माल का मैल है आपका, जो ज़कात है माल का मैल है। तो बहुत से लोग लेते हुए इसको हिचकिचाते हैं या फिर नहीं लेते। हम कहते हैं अपने मुँह से हम नहीं लेंगे, लेकिन होते भी वो नीडी हैं, ज़कात के लेने के ज़बरदस्त में भी आते हैं वो। तो इस्लाम ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल पे सवाब का दारोमदार नियतों के ऊपर है। तो जब वो नियत किसको कहते हैं? नियत कहते हैं दिल के इरादे को। ज़बान से बोलना लाजिम नहीं है, दिल में आपने इरादा कर लिया, आपने जब माल लिया, आपने लिया इरादा किया मेरे ज़कात का माल है, आपने अब ज़बान से उसकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखते हुए उसका भाई ये तो ईद का तोहफ़ा है आपको, या बच्चों के लिए आपके ये तोहफ़ा, या खाली रमज़ान ही नहीं, देखें बात ऐसे हालात होते हैं रमज़ान के अलावा भी बात फैमिलियों की कि उनको ज़रूरत होती है, तो और वो ऐसे सवाल भी नहीं करते, उनको वैसे भी प्रेफर करना चाहिए, लेकिन उसको उनका भी बच्चा कोई स्कूल में अगर पास हो गया या कोई अच्छा बच्चे ने काम कर दिया, उसने कोई अच्छा काम किया, तो इस बहाने तोहफ़ों के बहाने से आप वो ज़कात दे सकते हैं। और मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ सवाल से हट की चीज़ इजाफा कर दूँ, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि जो ज़कात जो आप लोग से लोग इसमें निकालते हैं, रमज़ान में निकालते हैं, क्योंकि 70 गुना ज़्यादा अजर मिलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर गैर रमज़ान में किसी की ज़रूरत है और आपने ज़कात निकालनी भी है, आपने नहीं आप हर साल देते हैं, अभी आपकी ज़कात ड्यू नहीं, आपने एडवांस में इसको ज़कात दे दी, लेकिन मेरा ईमान है अल्लाह तबारक व तआला से, अगर उसकी वो ज़रूरत पूरी होगी, जो उसको दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो 70 गुना से बहुत ज़्यादा होती है। रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, लेकिन रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो साहिब हैसियत है जिनको पता है कि उन्हें ज़कात निकालनी है, वो एक कॉन्सेप्ट ये बांध लें कि जितनी कोई जो होता है कि अपने हिसाब से भाई इतने माल आप महीने का इतना निकालना है, और नज़र में रखें कि कौन ज़रूरतमंद है, उसके मांगने से पहले आपकी मदद उस तक पहुँचेगी ना, तो यकीन करें कि आपकी जिसमें भी बरकत है, और वो जो दुआ होती है ना, कि जो ज़रूरतमंद की दुआ होती है वो सीधी अर्श पे जाती है, अल्लाह तबारक की लाजमी कबूल होती है। और जो खाली आपसे अच्छी नज़र से देखेगा ना, जो एहसान वाली नज़र होगी, यकीन करें उसका कोई नेमल बदल नहीं है, जो उसकी ज़रूरत पूरी होगी। तो ये अल्लाह ताला ने आप उसको तोहफ़ा दे के दें, आप हदिया दे के कहते हैं, बच्चे के लिए कह के देते हैं, कुछ भी करके देते हैं, तो आप उसको आप दे सकते हैं। मुफ्ती साहब, हमने देखा है कि एक घराना है, बहुत ज़्यादा नमाजी परहेज़गार भी हैं, दीन का भी बड़ा अच्छा रुझान है और अल्लाह की तरफ भी मुतवज्जे हैं, लेकिन बज़ाहिर हमें लगता है कि वो माशी तौर पर मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, माशी तंगियाँ आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो एक कॉन्सेप्ट फ़ौरन जहन में जाता है कि यार ये तो गुनाहों की वजह से हो रहा है, तो गुनाहों सिर्फ मुश्किलें और मुसीबतें गुनाहों की वजह से ही आती हैं या किसी नेक इंसान के ऊपर भी ये मुश्किलें आ सकती हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये यकीनन हर दफ़ा वो गुनाहों की वजह से नहीं होती, लेकिन वलन नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, हम तुमको आजमाएंगे खौफ से, भूख से, मालों की कमी से, और रिज़्क़ की कमी से, और फलों की कमी से। तो फरमाए तो यहाँ पे तो आजमाइश अपनी जगह पे एक बहुत मुस्तहकम चीज़ है और आती है जी, और ये एक हिस्सा है, लेकिन इंसान को जो फरमाया ना कि कुरान करीम की आयत है कि इंसान के पास जो अच्छी की अच्छाई पहुँचे तो वो उसकी निस्बत कर दे अल्लाह की तरफ, और उसके पास कोई बुराई पहुँचती है तो वो उसकी अपने नफ्स की तरफ करे। वो कि इम्तिहान होगा, ये सबर उस पर जो आजमाइश आई है उस पर फिर फ़ायदा क्या होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बाज़ का की हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला बाज़ लोगों के दर्जात तो इबादत से और रियाज़त से बढ़ाता है, और बाज़ लोगों के अल्लाह तबारक व तआला जो दर्जात होते हैं, उखरवी जो दर्जात हैं, वो उनको आजमाइश में डाल के उनके ज़रिए से उसके बढ़ा देता है। तो वो होता है, लेकिन उसमें करना क्या है, साबित ख़त्म रहना है अल्लाह से दुआ करते हुए, और उसको अपनी तरफ निस्बत करेंगे ना अपनी तरफ, तो फिर हम उसको इस्लाह की तरफ भी आएंगे, अल्लाह तरफ रुजू भी करेंगे। माशाल्लाह। तो ये है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और डॉक्टर सनाउल्लाह और मुज़म्मिल अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक था रिज़्क़ की कमी पे ही था, तो मैं चाहूँगा कि पहले हम आपसे भी इस पर डिस्कस करें, क्योंकि माशाल्लाह से आप कामयाब डॉक्टर हैं और अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, और आपने भी यकीनन बहुत रिज़्क़ की कदर की होगी, तभी अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। तो इस पर बात हम करेंगे, मुज़म्मिल भाई से भी करेंगे, आपसे भी, और डॉक्टर साहब से भी करेंगे। जी डॉक्टर साहब। ज़कात के हवाले से भी टॉपिक चल रहा था और रिस्क की कमी के हवाले से भी चल रहा था। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ज़कात जो है वो ये समझ लें कि माल अगर आप दे देते हैं
تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے نہ کہ کمی ہوتی ہے. اچھا اس کا میں ایک واقعہ بتا دوں. آج سے تقریباً کوئی 6 یا 7 سال پہلے, یہ لائیو بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ گھر میں کچھ چوری ڈکیتی ہو گئی. ڈکیتی بھی اس سچویشن کی ہوئی میرے اپنی کی, کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس مال کی زکوٰۃ اگر آپ نے ادا کر دی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے. بالکل صحیح. اس مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً میرے گھر میں کوئی 7 لوگ آئے اور 1 گھنٹہ انہوں نے ڈکیتی کی ہے. 1 گھنٹے میں تقریباً سارا صفایا کر دیا. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی, کچھ پیسے ایسے تھے جس میں نے آلریڈی اپنے ہاتھ سے اس کی زکوٰۃ دے چکا تھا. یہ ماہ رمضان کی بات نہیں کر رہا میں, عام دنوں کی بات کر رہا ہوں. جیسے عام دنوں میں کہا کہ ضرورت مند ہے اور وہ دیکھ رہے گا اور انتظار کر رہا ہے, کہ کوئی ظاہری بات ہے ابھی رمضان شریف میں 2-4 مہینے ہیں, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. تو آپ نے جب میں نے اس مال کی زکوٰۃ دے دی, تو ایسا میریکل اللہ تعالیٰ نے دکھایا گا کہ جو پنکھا 1 سال سے بند تھا, جب ڈکیت اس الماری کو کھولنے لگے, یہ میریکل بتا رہا ہوں میں, اپنی آنکھوں دیکھا, اور ایسی سچویشن تھی کہ وہ پنکھا خود بخود چلنے لگ گیا. وہ پنکھا چلا اور وہ بندہ نیچے گرا, 4 بندے اور مزید آ گئے اور آ کر ان سے کہہ رہے تم بیوقوف ہو, اوپر کیا کر رہے ہو. باخدا آپ یقین مانے کہ وہاں الماری میں جو پیسے رکھے ہوئے تھے اس کی زکوٰۃ آلریڈی ادا کر چکے تھے. تو یہ میریکل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے اس مال کی, اس جان کی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جان کا صدقہ بھی دیا جاتا ہے, اور اسی زکوٰۃ کی صورت میں دیا جاتا ہے. دوسری, رزق کی قدر کرنا یوں سمجھ لیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جس انسان نے رزق کی قدر کی ہے وہ کامیاب ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے, کبھی لے کر آزماتا ہے. تو ہمیشہ یہ دعا بھی ہونی چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو بھی خوشی آئے, تکلیف آئے, پریشانی آئے, عافیت کے ساتھ آئے. کیونکہ عافیت کی دعا ہمیشہ کرتے رہیں. عافیت کی دعا میں بھلائی ہے ہمارے لیے بھی اور آسانی ہے. یہ ضروری نہیں ہے گا کہ اگر کوئی خوشی ملی ہے تو اس میں بھی عافیت ہو. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی فلاں کو فلاں خوشی ملی یا زیادہ پیسہ ملا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. دیکھیں خوشی بھی نقصان دہ ہوتی ہے کبھی کبھی انسان. بالکل ایسے, جزاک اللہ. اور دعا کی اگر ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے جو محبوب عالم پینلسٹ ہیں جو ہماری ٹرانسمیشن میں روز آپ دیکھتے ہیں, بڑا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, کسی بھی ٹاپک پہ کروا لیں. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے ہم دعا کر لیں. اور جو ہمارے چھوٹے سے ننھے منھے ستارے جو آتے ہیں, ابو بکر, جی ان دونوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہماری ٹرانسمیشن کے اور اس سے ہٹ کے جو ابھی ہم موجود ہیں اور جو نہیں آ سکے, جس کی طبیعت خراب ہے اس کے لیے ہم دعا کریں, تاکہ جی بالکل دعا کریں تاکہ انشاءاللہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو اور ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور پھر اس کے بعد ہم دعا کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے بریک پہ. اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ابھی ہم کرتے ہیں دعا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام یا شافی الامراض اشفی امراضنا. یا اللہ ہماری ٹیم کے ممبران محبوب عالم بھائی اور مکی برادران جو ہیں, ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ننھے ستارے ہیں, یا اللہ وہ بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہماری یہاں پہ ٹیم میں غلام محی الدین بھائی ہیں, ہمارے بلال بھائی ہیں, تیمور بھائی, مزمل بھائی ہیں, حمزہ ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, اور دوسری دیگر جو ہمارے والدہ محترمہ ہیں. یا اللہ ہمارے میں کوئی بیمار ہے, ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے, ہماری ٹیم میں سے جو بھی کوئی گھروں میں جاننے والوں کے اندر ہیں, روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو, اللہ سب کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. مریض کربلا کے صدقے میں یا اللہ سب کو صحت یابی عطا فرما. یا اللہ تمام اسپتالوں میں جو لوگ بیمار ہیں, یا اللہ کہیں بھی کوئی بیمار ہیں, گھروں میں بیمار ہیں, سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. رمضان کی رحمتیں برکتوں کے صدقے میں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے, سب کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. خاص طور پہ ہماری بنو یوتھ کی آواز کی جو ٹیم ہے, ہمارے غلام محی الدین بھائی کی, اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے. جو ان کی محنت ہے, کاوشیں, ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے, اور خاص طور پر ان کو نظر بد سے محفوظ فرما. یا اللہ ان کو رحمت برکت عطا فرما. ہم سب کو رمضان کی برکات عطا فرما, اور دعاؤں کو تمام مسلمانوں کے ہمیں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. نظر جاتے ہیں اب چھوٹی سی بریک پہ, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.